Welcome to GeoGyanam. This is Sangeeta, and today we will do the lecture 3 of Geophysics. Let's start with the Earth shape. Okay, so based on Geodetic Reference System GRS 80, we have decided the Earth shape is oblate spheroid. Okay, सो ये दोनों क्वेश्चन एक गेट में आ चुका है, एक CSIR नेट में आ चुका है, तो इन दोनों टर्म्स को हमेशा याद रखना. बेस्ड ऑन विच रेफरेंस सिस्टम? GRS 80, विच इज जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम. ओके, एंड शेप इज ओब्लेट स्फेरॉइड. इसका मतलब क्या है? इट इज फ्लैटन एट पोल्स एंड बर्ज्ड एट इक्वेटर. इक्वेटर पे, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, देर इज वन ब्लैक सॉलिड स्फेयर, ओके, एंड रेड वन इज स्फेरॉइड. तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास एक बॉल है, उसको आप ऊपर से प्रेस करो तो क्या होगा कि ऊपर से तो फ्लैट हो जाएगा और बीच में से इट विल गेट वाइडन और ब्रॉडन. ओके, तो सिमिलरली इज द केस ऑफ दिस डायग्राम. आप देखो इक्वेटर पे इट इज बल्जिंग. कितना बल्ज कर रहा है? 7.1 किलोमीटर है ना. जो ब्लैक स्फेयर है उससे कितना बाहर जा रहा है? 7.1 किलोमीटर. और जो फ्लैट हो रहा है, कितना फ्लैट हो रहा है? इट इज़ फ्लैटनिंग 14.2 किलोमीटर. और पोलर फ्लैटनिंग किस लिए हो रही है? इट इज़ ड्यू टू दी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. अब आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है. ठीक है, चलो. तो similarly is written in this pink box which I have shown. So next is polar flattening. This is very important term, has been asked this year too in the GATE exam, I think. So this is an ellipse. Okay, so ellipse has one major axis and one minor axis. So based on this, there is one term which is polar flattening. It is equatorial radius A minus polar radius B divided by equatorial radius A. These have fixed values, which is A is equal to 6378137 point meter and B is 6356752 meter. So you have to remember these values. Okay. Next is there is Earth, I have shown here, and then the Sun. Earth has mass small m, Earth has mass capital M. Sorry, Sun has mass capital M. And both of these masses has been attracting each other with some force, and when they are separated by a distance r. So this is our universal law of gravitation given by one and only Newton. So it is F is equal to G m1 into m2 by d square. So what is G? It is universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay. So some few special terms for this is they are attractive force, they are independent of medium, and they are only valid for the point masses. Okay. Next is mass of Earth, radius of Earth, gravitational constant. So mass of Earth is 5.9 into 10 to the power 24 kg. Radius of Earth 6378 kilometer. So gravitational constant I have already told you. So you have to remember these values because these values will get used in when we will start the gravity method soon. Okay, now let's see what is gravitational field. There is mass m, which I have shown here. When you keep this mass m in a space, ठीक है, अगर आप इस small m mass को एक space में रख दो तो क्या होता है कि ये मूव करने लग जाता है. कोई चीज़ इसको खींच रही है विद द फोर्स. ओके, तो वो क्या है? उसका एक सोर्स भी होगा. दैट सोर्स इज कैपिटल एम. ओके, तो क्या है ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है? ये क्या है? एक इफेक्ट है, एक इमेजिनरी इफेक्ट है जो हम देख रहे हैं एक स्पेस में. ठीक है, कि जो हमारा स्मॉल एम है, जब उसको हमने स्पेस में रखा तो इट स्टार्ट गेटिंग इन मोशन और स्टार्ट गेटिंग मूविंग विद द फोर्स एफ. ओके. Next is gravitational strength and intensity. So stronger will be the force on mass, stronger will be the strength. जितनी ज़्यादा force होगी उतनी ज़्यादा वो strongly जो है उसकी strength होगी. तो it is given by E is equal to F by M, and E is gravitational strength और intensity. It is a vector quantity. It is having a direction, है ना. जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि जब स्मॉल m को हम मूव कर रहे थे, so it will be getting moved in a particular direction, right? So it is a vector quantity. Next is field due to the point mass m. So if there is a point mass m, which is given by this black box, and a small m, it is
getting attracted toward the capital M with this force, and if they are separated by distance r, so it is given by F is equal to gmm upon r square. So instead of m1 and m2 हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल एम और क्या लिखा है, स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास रखा है विच इज़ कैपिटल एम, और जो स्मॉल एम है वो उसकी तरफ खिंच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रख दें विच इज़ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो क्या होगा कि स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज आप नोट करते जाना, क्योंकि इनके ऊपर आजकल आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स आ ही रहे हैं, तो वी हैव टू गेट क्लियर अवर बेसिक्स। ओके, तो ए डायग्राम आप देखो पॉइंट मास का, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट इज पॉइंट मास एंड स्फीयर, और नेक्स्ट इज उसके बाद सी है पॉइंट मास ऑन अर्थ सरफेस। तो कुछ नहीं देखना, अब ये बॉक्स देख लो। आउटसाइड द अर्थ क्या है वैल्यू, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस भी क्या होगी, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बट एज यू स्टार्टेड मूविंग इनसाइड द स्फीयर और अर्थ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू 0. Next is gravitational acceleration. There is earth with mass m, capital M. ओके, और एक बॉडी है स्मॉल m जो कि अर्थ से एक सरफेस से काफ़ी दूर है ना, तो उसको हम एक एरो से मार्क कर देते हैं। सो अगर ये जो m है, बॉडी स्मॉल m है, उसको जो है अर्थ हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, अपने सेंटर की तरफ, तो वो क्या होगी, फोर्स F इज इक्वल टू एम जी। और अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगी, सो इट विल बी F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये एम एम स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और आपका फॉर्मूला आ जाएगा जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर इसी डायग्राम को आप देखो जो मैंने पीछे बताया था कि एक वो स्माइली देख रहे हो आप ऊपर, तो वो जो है h हाइट पे ऊपर है, अर्थ के h हाइट से ऊपर है, और आर ई जो है, कैपिटल आर ई जो है वो रेडियस है अर्थ का, और जो स्मॉल आर है वो रेडियस है कहाँ से, कैपिटल एम से लेकर जो बॉडी है एक सरफेस पे h हाइट पे उस वहाँ तक। तो देखते हैं, जी हमारा है, हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम इसको स्मॉल आर को इक्वल करें किसके, एच और आर ई के बीच का क्या रिलेशन होगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई प्लस एच, तो हमारा जी डैश क्या बन जाएगा, जो हम आर स्क्वायर है उसमें हम ये आर की वैल्यू डाल सकते हैं, तो आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या होगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर माइनस 2, ठीक है। अब एक स्पेशल केस होगा, अगर जो हमारी रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होगा हाइट से, तो हमारा जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, h प्लस 1 प्लस एच बाई आर होल ब्रैकेट माइनस 2, और जब h जो है बहुत छोटा हो जाएगा r से, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो जब ये कंडीशन पूछी होगी तो आपने नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर नहीं पूछा है तो ऊपर वाला, ठीक है। चलो, उसके बाद आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टर्म। इसमें क्या है कि एक पॉइंट P है जिसको हमने m मास से वो r डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक स्मॉल m है, वो P की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम उसके ऊपर जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट साइड में। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल का, वो होगा इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस जी कहाँ से आ गया, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट लग रही है, तो क्या आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। ओके, सो थैंक यू सो मच, दीज वर फ्यू बेसिक्स जो हमें बहुत जानने ज़रूरी थे ताकि हम ग्रेविटी मेथड शुरू करें अपना। तो कल ग्रेविटी मेथड या फिर कल या परसों मैं ग्रेविटी मेथड शुरू कर दूँगी। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है करने में। ओके, सो कीप लर्निंग, बाय बाय।
Do like, share and subscribe my channel, and do hit the bell icon.